انجینئر صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے بتایا نا مسلح اٹھاتا ہوں اور اس میں سے سونا نکال لیتا ہوں. نہیں یہ ایسا نہیں نا, آپ کوئی جادو کریں کیا؟ نہیں ویسے ہو سکتا ہے, ایسے آپ انجینئر ہیں, میں بھی انجینئر ہوں, ویسے ہو سکتا ہے ایسے, میں نے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہو اس لیے سکتا میں ہے, کیسے مان لوں؟ ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں. نہیں میرے کہنے پہ نہیں, آلریڈی اتنی دنیا کہہ رہی ہے, آپ مانیں. نہیں میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں کسی کو کرٹیسائز کر ہی نہیں رہا, وہ جو جیسے خوش ہے اس کو میں خوش رہنے دینا چاہتا ہوں. کرٹیسائز کروانا بھی نہیں چاہ رہا, میں آپ سے ان پرنسپل ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کیا یہ پاسبل ہے دنیا میں ایسا ہو جائے؟ دیکھیے معجزے ہوتے ہیں, میں بلیو کرتا ہوں کہ معجزے ہوتے ہیں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ پیغمبر تھے نا, میں غیر پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے, میں ان کے بارے میں کیا کرامت ہوتی ہے تو یہ بھی کرامت, میں ان کی کرامتوں پہ کیا کامنٹ کروں؟ نہیں آپ تو جائز سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, میری بھی سمجھ لیں. مجھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتا ہے نا کہ انہوں نے ایسا مارا, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ معجزے ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ وہ مسلح سے سونے کی ڈلیاں نکال لیتے. میں نے آپ کو کہا, میں نے ایسا کہا آپ کو؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلیم کرتے ہیں. سر میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا نا, میں تو آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. کلیم غلط ہے, یہ غلط ہوگا. نہیں غلط ہے یا نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں نا؟ نہیں غلط ہے یا نہیں, غلط ہوگا, ظاہر ہے غلط ہوگا. لاجیکلی ایسا لگتا نہیں ہے, لگتا نہیں ہے, جھوٹ ہی بولتے ہیں نا. آپ میرے منہ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ کلیئر کر لیں کہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے وہ الوژن کر رہا ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی دیواریں چین سے گزر جائے, یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں کوئی پانی کے اوپر چل سکے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا میں اب اس ساری ڈسکشن کے اندر ایک شعر, ظاہر آپ مجھے لگتا ہے کہ خاصے اس حوالے سے جو شعری اعتبار سے شغف بھی رکھتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہیں, کہ جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور, اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں, اور جتنے غریب تن ہیں جھاڑوں سے بے نیاز, اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں. تو اپنی جگہ پہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے, جائز ہے. میں صرف آپ سے سادہ سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں مسلح اٹھاتا ہوں. حضور میں بھی انجینئر ہوں, آپ بھی انجینئر ہیں. میں آپ سے انسپریشن لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے. وہ پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو مسلح کے نیچے سے سونا دریافت کر کے بتائیں گے. یعنی اب جب تک آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے تب تک میں تو بیعت کرواتا ہی نہیں ہوں. پھر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچاتا ہوں. سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے. میں نے جواب اس کا ویڈیو پر ریکارڈ کروایا, میں دے بھی دوں گا, لیکن میں مزہ لے رہا ہوں اس بات کا مزہ لے رہا ہوں کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ سب کچھ کرتے تھے, تو بھائی آج بھی بزرگ موجود ہیں, پھر وہ کر لیتے ہیں. آپ بزرگ ہیں, یعنی آپ ایسی کوئی پیر ہیں, فقیر ہیں. اگر ان کو رائٹ ہے بزرگی کلیم کرنے کا تو ہمیں رائٹ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس کاپی رائٹس ہے اس کے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ سپر سچ بول رہا ہوں. آپ سچ بول رہے ہیں؟ ہاں الحمدللہ, ہم نبی الاسلام کی دعوت کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں پھر آپ کی اس جواب کی طرف آتا ہوں. 1400 سال تک یہ لوگ حج عمرے کے لیے دنیا کے سارے بزرگ مکہ مدینے جاتے رہے, لیکن آئل زمین کے نیچے ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا. اور آپ کو اور مجھے یہ پتہ ہے, آپ تو کیمیکل انجینئر ہیں, ذرا اس کیمرے میں بتائیں یہ آئل کتنے عرصے سے زمین کے نیچے ہے؟ لاکھوں سال سے. ایسے ہی ہے, آپ کا بلیو ہے نا؟ ظاہر ہے, جب سے فاسلز ہیں نیچے سب. تو یہ بزرگ جب جاتے تھے جو کہتے ہیں ہم نیچے دیکھتے ہیں, ساتوں زمینوں میں دیکھ لیتے ہیں, اوپر عرش تک دیکھ لیتے ہیں, ہماری یہ بزرگی ہے. تو حضرت ارامکو کمپنی کو کیوں تیل نظر آیا 1944 میں؟ پہلے بزرگ کدھر غائب تھے؟ اس کا مطلب یہ فراڈی ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ایسا دنیا میں نہیں ہوتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. اب آ جائیں, آپ نے کہا سورس آف انکم. سورس آف انکم میری پینشن آتی ہے آفس سے, وہ بھی سورس آف انکم ہے. میرا ایک مکان کرائے پہ اسلام آباد میں, وہ بھی سورس آف انکم ہے. پلس ہم نے اپنے یوٹیوب چینل کو 2018 میں امیجز کے اوپر مونیٹائز کیا تھا, ویڈیو ایڈز کے اوپر نہیں, کیونکہ اس میں ہماری ریزرویشن ہے, اس پہ آپ کو اس طرح کا کنٹرول نہیں. وہ صابن کے اشتہار میں بھی عورت دکھا دیں گے, شیونگ بلیڈ میں بھی عورت لا کے دکھا دیں گے. ہم نے اس کو امیجز پہ مونیٹائز کیا تھا, اس کے ذریعے ہمارا یہ سارا اکیڈمی کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. وہ گولڈن بٹن آپ کے پاس ہے جی؟ یہ تو بہت پرانا ہو چکا, اب تو ڈائمنڈ بھی آ گیا. نہیں 3 ملین ہوئے. اس بٹن سے فرق نہیں پڑتا, ویورشپ سے فرق پڑتا ہے. کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ نہیں یہ تو پھر ہم نہیں بتائیں گے. ہمارے سارے اکیڈمی کے اخراجات جتنے عام لوگوں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ سب کا سب اس میں سے پورا ہوتا ہے الحمدللہ. لاکھوں میں, کتنے لاکھوں میں اس کو آپ رہنے دیں, بس وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں. ظاہر ہے اس پہ ٹیکس تو آپ دیتے ہی ہوں گے, وہ ٹیکس کٹ کے ٹیکس تو آٹومیٹکلی کٹ کرتا ہے, وہ بھی ہے. اور بلکہ گوگل جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو ٹیکس پیئر کی حیثیت سے ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے, وہ بھی ہم بنوا کے گوگل والوں کو جمع کرواتے ہیں, وہ آپ کو پتا ہوگا. ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. اور میں ٹیکس ریٹرنز 2002 سے بھر رہا ہوں, جب میں نے جوائننگ دی تھی اپنی پہلی جاب پہ, اور وہی آخری ثابت ہوئی. آج 23 سال ہو چکے, میرے تمام ایسٹس ڈکلیئر ہیں. یوٹیوب والا کام انجینئرنگ سے بہتر نہیں؟ نہیں, یوٹیوب والا کام ہی نہیں ہے, میں تو دین کا کام کر رہا ہوں جی. اگر یہ یوٹیوب والا کام ہوتا تو ہم نے اپنی ویڈیوز کی ریکارڈنگ شروع کی تھی 2008 میں, مونیٹائز کیا 2018 میں. پتہ ہی نہیں ہوگا نا. نہیں پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ امیجز والا آپشن موجود ہے. مونیٹائزیشن کا تو پتا تھا, اللہ سے ڈرتے تھے کہ ہم دین کے نام کے اوپر کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری انکم جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. 2018 جنوری میں نے یوٹیوب کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو بلوایا, اور وہ کیوں بلوایا, وہ بھی ایک حادثہ تھا. حادثہ یہ ہوا کہ یوٹیوب نے ہماری ویڈیوز کو
प्रमोट करना बंद कर दिया क्योंकि मोनेटाइज नहीं था। मोनेटाइज करेंगे तो वो प्रमोट भी करेगा, फिर हमारी मजबूरी थी, तो हमने इनकम के लिए नहीं बल्कि इसे प्रमोट करवाने के लिए कि लोगों तक बात पहुंचे, तो सबसिस्टेंस लेवल पे आखिरी दर्जे में किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि हमारी चूंकि व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, डेली की हमारे सिर्फ ऑफिशियल चैनल के ऊपर 1.5 से 2 लाख की व्यूअरशिप है। और उसमें ये नहीं कि आज जो मेरे क्लिप तो हम हफ्ते में 1 या बाजू का 2 अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस रनिंग में रहती हैं और अल्लाह ताला बरकत डालता है इस एतबार से कि उसका वॉच टाइम ज्यादा होता है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इमेजेस पे भी इतना कुछ हमें मिल जाता है कि हम अपनी अकेडमी का ओ छोड़े 30-40 लाख की तरफ से खुदा के लिए अल्लाह से डर जाए, इतने भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा ही आपने बता दिया। देखो पुरानी वीडियोस भी और वॉच टाइम भी और जितने आपने व्यूज नहीं 30-40 लाख नहीं, 30-40 लाख नहीं है, 30-40 लाख नहीं है, बल्कि अकेडमी का खर्चा पूरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर्स को कहेंगे कि यूट्यूब चैनल्स बना लें? नहीं, हर बंदे की कॉम्पिटेंसी नहीं है। 70 साल में हम एक डॉक्टर इसरार प्रोड्यूस कर सके। किंग एडवर्ड ने कई डॉक्टर निकाले, डॉक्टर इसरार तो एक ही निकला। तो इस तरह तो नहीं कि कोई भी इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। कोशिश करके देख लें, उलमा नहीं बन सके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है, किसी के काम को कबूलियत दे। हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब कहते थे कि मुझसे ज़्यादा इल्म है लोगों के पास और लोग अच्छे तरीके से दरस कुरान कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मकबूलियत दे दी है, मेरी आवाज़ में तासीर रख दी है, लोग मेरी बात सुनते हैं। हालांकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मौलाना नहीं हूँ। और देखिए अहमद दीदार साहब, हज़ारों क्रिश्चियन ने उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किया। वो एक कबाड़िए की दुकान पे जॉब करते थे, कोई उनके पास मुफ्ती की डिग्री नहीं थी, अल्लाह ने उन्हें चुन लिया। ये अल्लाह के काम है, अपने बंदों को चुन लेता है। सहाबा कराम में भी अक्सर जो है लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया का इमाम बनाया। उन्होंने नबी इस्लाम की बातों को क्रैम किया, उनको उसी तरीके से मिनवान आगे पहुंचा दिया। आप अपने इस यूट्यूब चैनल से और वीडियोस के प्लेटफॉर्म से लोगों को बहुत रगड़ते रुगेते हैं, इल्जामात की बौछार भी करते हैं। नहीं, हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, खासे परेशान है। कौन? और आज उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया इसके ऊपर। वो कौन से दोस्त हैं जी आपके? साहिल अदीम साहब। अच्छा, क्या हुआ? लास वेगस का जिक्र किया, उनकी शादी भी करा दी आपने। नहीं, मैंने तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। मैंने क्यों करवाना? आपने कहा कि उन्होंने शादी कर रखी मैंने क्यों कहना? लास वेगस में किस वीडियो में मैंने क्या दिखाया? मैं तो उन पर कोई बात ही नहीं करता, मैंने क्यों बात करता? आज ही उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। तो वो जवाब तो किसी सवाल का होता है ना, तो मैंने तो कोई वीडियो उन पे नहीं रिकॉर्ड कराई है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। साहिल अदीम साहब आपसे नहीं, उनके कहने से क्या है, मेरी वीडियो दिखाएं जिसमें मैंने कहा उन्होंने दूसरी या तीसरी शादी की हुई है, जब मैंने कहा ही नहीं है। और किसी की बात मेरे मत्थे पे को मार, किसी से पैसे वैसे भी लिए हैं उन्होंने? ये कहा आपने कि पैसे? मैंने कुछ भी नहीं कहा उनके बारे में, मैंने क्यों कहना उनके बारे में? कोई ऐसी बात नहीं की। आपको मेरा ख्याल है गलत इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है। मैं तो साहिल अदीम साहब के मुंह से, साहिल अदीम साहब को छोड़े ना, बोलूंगा तो मैं, तो आप इसके ऊपर तहकीक करें कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। उन्होंने कोई शादी तो नहीं की हुई? पता नहीं, मुझे क्या पता, मुझे किसी के फैमिली मैटर्स पता ही नहीं है। उनके कहने से क्या होता है? मेरे बारे में तो लोग बड़ी बातें करते हैं, मेरे बारे में तो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें क्लेम की जिनका मुझे पता ही नहीं है। तो मैंने उनके बारे में कोई, कभी आपने लास वेगस का जिक्र नहीं किया? चार्ज नहीं। मैंने क्यों करना है भाई? चार्ज उनके मध्य मुकाबिल एक यूट्यूबर है शहजाद गयास साहब, उन्होंने कुछ उनके हवाले से डिस्कशन की थी, उनकी आपस में कोई डिस्कशन थी जिसमें उन्होंने कुछ फैक्ट सामने रखे थे जिनके साथ मैं भी एग्री करता था, इस एतबार से कि वो मुझसे मुतल्लिक थे जो उन्होंने कहीं एक बातें की हुई थी। तो उनकी वीडियो के नीचे मैंने जाके कमेंट्स किए। उन कमेंट्स की तशरीह उन्होंने ये की कि जो ये यूट्यूबर है इन्होंने जितनी बातें की हैं गोया के इंजीनियर साहब कर रहे हैं। मैं तो कई लोगों की पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स करता हूं, उसका मतलब ये नहीं होता कि 100% आप उसके साथ एग्री, आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, गांधी साहब की मैं वीडियोस के नीचे कमेंट्स करता हूं, लेकिन मैं उनके कई नजरियात से इख्तिलाफ करता हूं। हमारे उस्ताद हैं, उसके बावजूद अगर मैं किसी वीडियो में उनकी तारीफ कर दूं 55 मिनट की वीडियो में, तो एन मुमकिन है कि मुझे 40 मिनट की वीडियो में जो पॉइंट्स मिले हैं मैं उनके साथ एग्री करता हूं। तो उसका मतलब उन्होंने ये समझा कि अब ये यूट्यूबर जो जो इल्जामात मेरे पे लगाएगा या माजी में लगा चुका, गोया इंजीनियर साहब ने लगाए, ये उन्होंने यूं किया। ये भी मैंने आपका दिल रखने के लिए बता दिया कि उन्हें गलतफहमी कहां पे हुई है। मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि अभी तो पिछले वीक लाइव पॉडकास्ट में मुझसे सवाल हुआ सेशन के अंदर, हमारे जो लाइव सेशन चलते हैं, तो मैंने कहा हमारा तो उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं, हम उन्हें एक दीनी पर्सनैलिटी समझते हैं। जहां पर कोई इल्मी इख्तिलाफ है वो हाईलाइट करते हैं, बाकी पर्सनैलिटी का कोई इख्तिलाफ नहीं। हम उन्हें कोई यहूद नसारा का एजेंट नहीं समझते, एक मुस्लिम समझते हैं, इल्मी इख्तिलाफ उनसे रख सकते हैं। ये कुरान और सुन्नत की बात आप करते हैं, मुबल्लिग दीन हैं, इंजीनियर आप बाय डिग्री हैं, ये सियासत में कूदना जरूरी होता है? या सियासत में आपकी कोई एक्सपर्टीज है, या आप एज एन एनालिस्ट आप समझते हैं कि सियासत पे भी कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कूदता सियासत में, मैंने क्यों कूदना है सियासत में? आप बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला है? नहीं, कोई बुग़्ज़ इमरान नहीं है, ना बुग़्ज़ इमरान है, ना बुग़्ज़ नवाज है, ना बुग़्ज़ फौज है। उल्फत शहबाज लगती है कहीं ना कहीं। नहीं, शहबाज शरीफ साहब से मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, क्यों होगी? 7-8 महीने पहले की एक वीडियो आपकी खासी वायरल हो रही है इन दिनों की वायरल हुई है, तो 8 महीने पुरानी है। ये भी 8 महीने पुरानी है। ये छान पटक की आपकी टीम, छान पटक की तो जरूरत नहीं है, उस वक्त पता चला कि 8 महीने हाँ जी पहले की वीडियो फिर वायरल हो रही है। कौन कर रहा है? हमने तो नहीं वायरल किया, हमने तो कोई नहीं अपलोड, लेकिन वो तासुरात तो जाहिर आप नहीं, किसने जिसमें आप डिजिटल दहशतगर्दी की बात, किसने वायरल किया है? मैंने तो कोई ऐसी वीडियो वायरल नहीं की है।
मेरे लिए वीडियो तो आप ही की है ना, कौन सी वीडियो, किसने वायरल की? वीडियो तो आप ही की है कौन सी वीडियो जिससे किसने आप वायरल डिजिटल दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आजकल एक वीडियो वायरल जी, हुई हुई है। तो किसने की है वो? मैंने तो नहीं किया, हमारे वीडियो चैनल आप ही पे की दिखाएं। है, वीडियो आप ही की है ना। वो मेरे चैनल मैं चैनल पे ये बेशुमार वीडियो है। अगर मैं सवाल आपने शायद सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंने सवाल वीडियो वायरल समझ है, लिया ये आपका। नहीं कहा कि वीडियो आपने वायरल की हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, किसने किया वायरल? जिसने भी की होगी। नहीं, आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपका तो राइट है ना कि आप बताएंगे। देखिए, ये तो रियासत भी सोर्स ढूंढ रही होती है आजकल के फेक न्यूज का पता चले आई कहां से है। नहीं, आपको Propaganda पता है, हो कहां से देखिए वो है। वीडियो कहीं से वायरल हुई है, उसके ऊपर लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो आपको तो पता होगा कौन कौन बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बताएं ये ना, मुझे पता है कौन खुल बोल के रहा है। बताएं ना। आफ्ताब इकबाल साहब ने इसके ऊपर बैक टू बैक 3 वीडियोस कर डाली। दो की। एक तो ताजा वीडियो आज ही मुझे मिली है, शायद वो कुल मिला के हाँ, तीसरी वो होगी। टोटल 2 आपने 2 देखी होंगी, आज एक और आ गई है। अच्छा, वो शायद दूसरी वाली को आज आपने देखा, वो अपलोड कब हुई है जो आज आप? अब मुझे याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। बरल 2 या 3। यानी आप कह रहे हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब ने उसको वायरल किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज किसने वायरल किया? आपने कहा कौन बोल रहा है उसके ऊपर, कौन बोल रहा है? ओहो, मैं तो बोल रहा हूँ ना, 7 महीने एक पुरानी बात है, तो अभी कोई आई है तो किसी ने उसको वायरल करके उससे होगा, ये मकसद अचीव किया। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। इमरान रियाज साहब का भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने, इमरान रियाज साहब अच्छा, भी उन्होंने किया। अच्छा, क्या कह रहे नहीं, मैं हैं? ये नहीं कह रहा कि उन्होंने किया है। हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आप नहीं कह रहे और मुझसे पूछ रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने वायरल किया है। हाँ, वायरल के बारे में मैं नहीं कह सकता वायरल उन्होंने किया ना, उन्होंने तो व्लॉग किया उसके ऊपर, आपके सामने आप देख लें किसने वायरल किया हो। यूट्यूब के ऊपर पीटीआई के चाहने वालों में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप उन्हीं की है ना, उन्होंने पिछले मंडे को अपलोड किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, अब आप सवाल करें। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज साहब ने एक वीडियो वायरल की जिसमें उन्होंने 7 महीने पुराने का मेरा एक गुफ्तगू का क्लिप उठाया और उसके ऊपर डिस्कशन की। तो ये आप इमरान रियाज साहब को पूछना चाहिए कि 7 महीने पहले भी इस वीडियो के ऊपर आपने ट्वीट की थी और आपके इल्म में ये 7 महीने पुरानी है, और अब आप उसको वायरल करके उसमें से मकसद ये अचीव कर रहे हैं गोया कि ये 26 नवंबर के उस एपिसोड के बाद की वीडियो है और एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे लॉन्च किया। तो हम इस पे ये कहेंगे कि अल्लाह से डर जाएं। ये जुलाई 2024 की वीडियो है और इसका नवंबर 26 के साथ, 2024 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है मैंने उनसे रब्ता किया है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एडमिट किया और अगले व्लॉग में उन्होंने माना कि मुझे साथियों ने बताया ये पुरानी वीडियो है। और मुझे साथियों ने यह भी बताया कि जो मैंने इन पे इल्ज़ाम लगाया था ना कि इन्होंने इद्दत केस पे बात नहीं की, तो मुझे पता चला कि उन्होंने उस पर भी बात की है। फिर आस्ता आस्ता उनके साथियों ने उनको जब बताना शुरू किया तो एक एक करके वो सारे के सारे उनके दावे गलत निकल आए। अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। कौन लोग कहते हैं? बताए ना। देखें, जब मुझसे पूछ रहे हैं तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप आम आदमी होते तो मैं आप पे ये बात भी कीबोर्ड वॉरियर्स सोशल मीडिया कौन, किसके, मतलब नून लीग वाले कहते हैं? ये आप कैसे, मतलब मैं पूछ रहा हूं नून लीग वाला कह रहा है आपसे, जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वो नून लीग का भी हो सकता है, वो पीटीआई मैं का यही भी हो पूछ रहा सकता हूं ना, नून लीग वाले कर रहे हैं, पीटीआई के कर रहे हैं, जमात इस्लामी के कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों अगर ये कोई कहेगा कि मोहम्मद अली मिर्जा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है तो कम से कम वो नून लीग से नहीं हो सकता। नहीं, बताएं ना, आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, मैं आपसे सीख रहा हूं, मैं आपकी गुफ्तगू भी वो बड़े वो कहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक आम आदमी नहीं है, एक जर्नलिस्ट मेरे सामने बैठा है, तो मुझे बताएं। एस्टैब्लिशमेंट का टाउट तो वही कहेगा जो सबसे ज्यादा ज़ेर-ए-ताब होगा एस्टैब्लिशमेंट। कौन, बताएं ना, इस तरह क्यों पहेलियों में क्यों डायरेक्ट बात करें? जो पॉलिटिकल पार्टी ज़ेर-ए-ताब है, जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ बैठा नहीं हुआ तो मैं क्यों नाम लूं उस पॉलिटिकल पार्टी का, आप भी जानते हैं। नहीं तो फिर तो अगली बात ही नहीं होगी। जब सवाल ही कामिल नहीं होगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? जब तक आप सवाल, आप मेरा सवाल भी समझ रहे हैं, आप मेरे सवाल की जड़ को भी समझ रहे हैं। पाया जाता है। नहीं, पता क्या, आपसे मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप इशारे किनारे में बात करेंगे फिर मैं भी जवाब खुल के नहीं दूंगा, मैं भी इशारे किनारे में बात करूंगा, उसका एंड नहीं निकलेगा। आप खुल के बात करें कि ये लोग कर रहे हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूं। अच्छा, कीबोर्ड वॉरियर्स का जो लफ्ज है, जी, वो इमरान खान के टाइगर से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर से मंसूब है। वो क्या कहते हैं? अब जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की ज़ेर-ए-ताब है और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है। और जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो मोहम्मद अली मिर्जा हैं वो एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। उनके पास सबूत क्या है इस बात का? जब उनके पास कोई रिपोर्ट आ गई ऐसी, उनको कोई अब तो नहीं आ पा रहे बुला के कोई नई रिपोर्टें दिखा दी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने क्लेम कर दिया, कोई सबूत होगा ना। देखें, दावा उनका है ना, दलील वो देंगे। आप मुझसे पूछें तो मैं इसे डिनाई करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर किसी के पास सबूत है तो वो लेकर आए, मुझे झूठा साबित करे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपनी सफाई में बहुत कुछ कह सकता हूं अपने माजी से, लेकिन मैं उसे जरूरी नहीं समझता। जब किसी के पास कोई दलील ही नहीं है तो उसका फिर आगे से जवाब देने का फायदा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम ना कभी माजी में रहे, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में होंगे। हम इन प्रिंसिपल ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है कि वो यहाँ की सियासत को डिसाइड करे और लोगों को हीरो बनाए उसके बाद जीरो बनाए, ये उनका काम ही नहीं है। उनको चाहिए वो अपना काम करें, पॉलिटिशियंस को अपना काम करने दें। बाकी जो माजी की गलतियां हैं वो कॉन्टिन्यूस उसी तरीके से चल रही हैं। अगर आज की एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है कि उससे जान छुड़ाए तो वो कहते हैं कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। वो उससे जान नहीं छुड़ा पा रहे और इसमें टाइम लगेगा। हमारी ख्वाहिश है कि ये अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें और मुस्तकबिल में अपने मामलात को बेहतर करें।